بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر اس کی ڈیوٹی اس سنسان جنگل پر تھی اور وہ پھر سے اکیلا بے خوف و خطر اس جنگل میں موجود تھا۔ کیپٹن نے اس سے کہا تھا کہ وہ علی کو اپنے ساتھ لے آئے، لیکن وہ اپنی تنہائی میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے اپنا خیمہ سیٹ کیا اور اپنی چیزیں رکھنے لگا۔ چوکی میں کافی دن سے اس جنگل کی شکایت جاری تھی کہ بارڈر کے پار سے بہت سے شکاری ادھر جانوروں پر حملہ آور ہو کر تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنے ہی جانور ان کی اس سازش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ جنگل چوکی کے بالکل قریب لگتا تھا، اس لیے فوجیوں کو تنگ کرنے کی انہوں نے یہ نئی مہم چلائی تھی۔ اسد کا تو بس نہ چلتا تھا، ان کو بھون کر رکھ دیتا، اس لیے اس نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگل پر ڈیوٹی کر چکا تھا، اور یہ پہلی دفعہ ایسا تھا کہ وہ اکیلا تھا۔ وہ اپنا خیمہ سیٹ کر کے ابھی فارغ ہوا ہی تھا کہ اچانک سے وہاں سے سرسراہٹ کی آواز آنے لگی۔ وہ بالکل ہوشیار ہو کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے ہلکی ہلکی سی آواز آنے لگی۔ وہ آوازوں کے عقب میں جانے لگا۔ آوازیں اس سے کچھ فاصلے پر ہی محسوس ہو رہی تھیں۔ کوئی ہے، مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو زار و قطار چیخ رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اسد جلدی سے اس آواز کی سمت دوڑا۔ وہ لڑکی اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسد جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا وہ آواز کے بالکل قریب جا رہا تھا۔ آواز اب اس کے بالکل قریب ترین ہو چکی تھی۔ وہ کوئی خاردار جھاڑیاں تھیں جہاں سے اس لڑکی کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی اسے وہاں کچھ آدمیوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جھاڑیاں خاردار ہونے کی وجہ سے اسد کو شدید مشکل پیش آ رہی تھی، اور وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اس قدر خاردار جھاڑیوں میں یہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا تو اگلا منظر اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں اسے کبھی ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ وہ انتہائی دھک سا ہوا پریشانی سے صورتحال دیکھنے لگا اور جلدی سے آگے بڑھا۔ وہاں پر تین آدمی ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس کے کپڑے آدھے پھٹ چکے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر انتہائی افسوس سے اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ کچھ دیر تو وہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہا، لیکن اگر وہ وہاں پر شرم محسوس کرتا تو وہ اپنی غیرت کو کیسے دبا سکتا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور ان لڑکوں کو انتہائی غصے سے پیچھے کی جانب دھکیلا اور اس لڑکی کے بچاؤ کے لیے خود کے پاس موجود اپنی شال اتار کر اسے لپیٹی۔ وہ لڑکی اپنے بچاؤ کے لیے اس مسیحا کو دیکھ کر بے انتہا خوش محسوس ہوئی۔ ان لڑکوں کو اسد کو دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اسد پر حملہ کر کے اسے پیچھے کی جانب گرانے کی کوشش کی، تو اسد فوجی ٹریننگ میں اس قدر ایکسپرٹ تھا کہ اس نے بھی انتہائی غصہ اور جرأت سے ان کا مقابلہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ وہ تین آدمی تھے اور اسد اکیلا تھا، لیکن پھر بھی اسد ان تین آدمیوں پر بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک سے ان میں سے ایک آدمی نے اپنی جیب میں سے گن نکالی اور اسد کے سر پر تان دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، اسد نے ہاتھ مار کر وہ گن دور اچھال کر پھینک دی اور اس کو ہاتھوں سے ہی مارنے لگا، لیکن اس آدمی کے دوسرے ساتھی نے وہ گن اٹھا کر اسد پر فائر کر دی اور اس کی ٹانگ میں 2 گولیاں پیوست کر دیں۔ اس لڑکی نے گولیوں کی آوازیں سن کر چیخیں بلند کر دیں اور اسد زخمی ہو کر بے بسی سے زمین پر ڈھہ گیا۔ وہ آدمی اسد کی حالت دیکھ کر جلدی سے وہاں سے بھاگ گئے۔ اسد کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ لڑکی اسد کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، لیکن اس کی خود کی بھی ایسی حالت تھی کہ بس ترس کھانے جیسی تھی۔ اس لڑکی نے اسد کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اسد سے دوبارہ اٹھا نہ گیا۔ وہ باہر کی جانب بھی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ اسے خوف تھا کہ اگر وہ آدمی باہر ہوئے تو پھر دوبارہ اسے کہیں اور نہ لے جائیں۔ وہ زارو قطار رونے لگی اور اسد سے معافیاں مانگنے لگی کہ میری وجہ سے آپ بھی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اسد سے بولا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن اسے حوصلہ دے رہا تھا کہ وہ چپ کر جائے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ گولیاں بالکل معمول کی بات تھیں۔ اسد نے اس سے پوچھا کہ وہ وہاں کیسے آئی، تو اس لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام انم ہے اور وہ آدمی اسے اغوا کر کے لے کر آئے ہیں۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے بتا رہی تھی، لیکن اسد نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اس کی عزت بچ گئی۔ اب اسد سے بالکل بھی بولا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ گولیاں ایک ہی جگہ لگی تھیں اور ایک ہی جگہ پر لگنے کی وجہ سے اس سے بالکل بھی نہیں اٹھا جا رہا تھا۔ زخم بہت گہرا ہونے کی وجہ سے وہ درد کی شدت سے اور کچھ دیر بعد بے ہوش ہو گیا۔ وہ لڑکی کافی دیر تو اس طرح صورتحال دیکھتی رہی، لیکن پھر عقل آتے ہی کچھ دیر گزرنے کے بعد آخر کو وہ باہر نکلی اور اونچی اونچی آواز سے پکارنے لگی کہ کوئی ہے، کوئی ہے۔ خاردار جھاڑیاں شروع ہو رہی تھیں۔ وہ ان جھاڑیوں سے گزر کر آگے کی جانب چل دی اور دوبارہ سے اونچی آواز میں بولنے لگی۔ تبھی ایک لڑکی اس سے اپنی جانب آتی دکھائی دی۔
उस लड़की की आंखें मुकम्मल नीले रंग की थीं और उसका हुलिया भी अजीब तर्ज का था, लेकिन वो इंतहाई खूबसूरत थी। अनम ने दिल में सोचा कि शायद यहाँ के लोगों का हुलिया ऐसा ही होता होगा। वो उस लड़की को देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी से उसके पास पहुंचकर बोली कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे मदद की जरूरत है। तो उस लड़की ने उससे पूछा कि उसे किस चीज की मदद की जरूरत है। तो उसने कहा कि एक आदमी जख्मी है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो वो लड़की हैरानी से अनम का मुंह देखने लगी कि इस तरह जंगल में वो क्या कर रहे हैं। तो अनम ने उसको सारी सूरत हाल बताई तो वो लड़की भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वो उसे मतलूबा जगह पर लेकर पहुंची तो असद वहां बेसुध पड़ा हुआ था। उस लड़की ने असद को उठाना चाहा तो अनम हैरान होकर उसका मुंह देखने लगी कि तुम अकेली लड़की इसको कैसे उठा लोगी। तो वो मुस्कुराकर बोली कि नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं उठा लूंगी। उसने अपने हाथों में असद को उठा लिया। अनम के तो गोया काटो तो बदन में लहू दौड़े वाला हिसाब हो गया कि एक लड़की ने कैसे एक मर्द को आसानी से अपने बाजुओं में उठाया हुआ था। इतनी ताकत! लेकिन शायद यहाँ के लोग ताकतवर होते हैं, अनम ने दिल में सोचकर खुद को तसल्ली दी। वो लड़की असद को उठाकर आगे की जानिब बढ़ गई तो अनम बोली कि तुम अब कहाँ जाओगी। तो वो बोली कि जहां भी जाऊंगी तुम भी साथ आ जाओ। वो उनको लेकर खारदार झाड़ियों से बाहर निकल आई और जंगल के दूसरी जानिब चल दी। अनम ने शाल लपेटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ गैर महसूस हो रहा था। नंगे पांव होने की वजह से उसके पांव में इतना ज्यादा चलने की वजह से छाले पड़ चुके थे। लेकिन वो असद को अपनी वजह से इतनी बड़ी मुश्किल में देखकर इतनी परेशान थी कि उसे वो छाले भी कम दिखाई दे रहे थे। वो उस लड़की के साथ आगे जा रही थी, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि उसने जाने कैसे उस गैर लड़की पर एतबार कर लिया है। कौन है वो लड़की, कैसी हो, मजीद किसी मुश्किल से निकलने की बजाय मजीद किसी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन वो लड़की उसे एक बड़ी सी इमारत के सामने ले गई। वो इमारत बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि अनम को लगा उसने अपनी जिंदगी में इससे बड़ी इमारत पहले कभी नहीं देखी। उस इमारत की हालत वो बहुत बुसीदा सी लग रही थी। लेकिन जैसे ही अनम ने अंदर कदम रखा उसके तो गोया 14 तबक ही रोशन हो गए। सारा हाल खाली पड़ा हुआ था, वहां कोई भी मौजूद न था। अनम होंकों की तरह उस लड़की के मुंह की तरफ देखने लगी और पूछने लगी कि तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है। मैंने तो तुम्हें अस्पताल ले जाने का कहा था। क्या इस जंगल के इर्द गिर्द कहीं भी शहर की आबादी में कोई अस्पताल नहीं है जो तुम इस जंगल की ही इमारत में ले आई हो? और ये जंगल में इतनी बड़ी इमारत कैसे बनी हुई है? क्या तुम यहाँ पर रहती हो? अनम के इतने ज्यादा सवालों का उसने एक का भी जवाब न दिया और उकताए हुए लहजे में बोली कि चुप करके मेरे साथ आ जाओ। अनम को उसके रूखे से जवाब से गिल्ट फील हुआ, लेकिन फिर वो भी चुपचाप उसके साथ चलने लगी। वो असद को उठाए एक कमरे में ले गए और उसे वहां पर एक जगह पर लेटा दिया। लेकिन जैसे ही अनम कमरे में दाखिल हुई, अगला मंजर देखकर दिल पकड़कर बैठ गई। असद वहां पर यूं ही हवा में मौल्लक था, कोई भी चीज नहीं थी जिसने उसे सहारा दिया हुआ था। असद को हवा में मौल्लक देखकर पूछने लगी, ये तो नीचे गिर जाएगा, तुमने कैसे इसको यहाँ लटकाया है? तो वो बोली कि ये बेड पर लेटा हुआ है, ये नीचे नहीं गिरेगा। तो अनम हैरानी से उसका मुंह देखने लगी और बोली, मुझे तो कोई बेड दिखाई नहीं दे रहा, फिर तुम कैसे कह रही हो कि ये बेड पर लेटा हुआ है? ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अनम परेशानी से इधर उधर देखने लगी तो सारा कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। उस लड़की ने दोबारा अनम को कहा कि बराए मेहरबानी आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डालें और चुप करके सूरत हाल को देखें। दोबारा से उस लड़की ने उसके रूखे अंदाज और उसकी बात पर अनम चुप हो गई। लेकिन असद को इस तरह हवा में मौल्लक देखकर उसके दिल को कुछ हो रहा था कि वो नीचे न गिर जाए। वो लड़की कैसे कह रही थी कि वो बेड पर है, जबकि वहां पर तो कोई बेड बिल्कुल भी सिरे से मौजूद ही नहीं थी। उस लड़की ने असद की वर्दी को साइड पर करके उसका ट्रीटमेंट खुद ही शुरू कर दिया। लेकिन अनम के लिए अगला मंजर उससे भी ज्यादा खौफनाक था। उसके हाथ में कोई भी औजार न था, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे औजारों का इस्तेमाल करके उसके जख्म में से गोली निकालने की कोशिश कर रही हो। जख्म बहुत ज्यादा गहरा था, उसको ठीक होते होते भी काफी दिन लग जाएंगे। तुम ऐसा करो, यहाँ पर बैठ जाओ। उस लड़की ने दीवार के साथ इशारा किया तो अनम हैरानी से उसका मुंह देखने लग गई कि वो जमीन पर कैसे बैठेगी। उस लड़की ने दोबारा अनम को होंकों की तरह खड़े देखा तो दोबारा से मुखातिब होकर बोली कि मैं कह रही हूं आप थक जाएंगी, आप यहाँ बैठ जाओ। हर जगह खामोशी होने की वजह से उसकी आवाज गूंज रही थी। अनम दीवार के साथ बैठने लगी। वो जमीन पर अपनी तरफ से बैठने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे को हुई उसे महसूस हुआ जैसे वहां पर कोई चीज है जिस पर वो बैठी हुई है।
लेकिन उसने जल्दी से खड़े होकर देखा तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो उसका मुंह देखने लगी और बोली कि यहाँ पर ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई बेंच पड़ा है, लेकिन मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो वो लड़की दोबारा से अनम से मुखातिब होकर बोली कि मैंने आपको कहा भी था कि आपने इन बातों की फिक्र नहीं करनी और ज्यादा बात की तह में नहीं जाना, ये आपके लिए अच्छा है। जो जैसा हो रहा है वैसा होता देख लो, उसने इंतहाई साफ लहजे में कहा। तो अनम परेशान हो गई कि वो न जाने कहाँ से आ गई है। अभी 4 दिन पहले ही की तो बात थी जब उसकी शादी होनी थी। उसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और वो घर वालों से जिद लगाए बैठी थी कि वो आखिरी दिन कॉलेज में अपने दोस्तों से मिलने जाएगी। उसकी माँ ने बादल न ख्वास्ता उसे इजाज़त तो दे दी, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि शादी से चंद रोज़ पहले बाहर निकलना अच्छा नहीं होता। लेकिन वो उन सब बातों को नहीं मानती थी और वो अकेली ही कॉलेज चली गई। उसकी जिस लड़के से शादी होनी थी उस लड़के की कज़न उससे मोहब्बत करती थी और उसकी शादी किसी सूरत में ना होने देती। वो कॉलेज से वापस आ रही थी तो उसकी कज़न ने उसको रास्ते से हटाने के लिए अगवा करवा दिया। जिन आदमियों ने उसे अगवा किया वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले आए। जब उसे होश आई तो वो बिल्कुल जंगल में झाड़ियों के दरमियान पड़ी हुई थी। उसने उठने की बहुत कोशिश की लेकिन उससे उठा न गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि वहां पर वो आदमी आ गए और आगे का मंजर सोचकर ही उसकी रूह तक काम गई और वो इंतहाई अजियत से अपनी आंखों पर हाथ रखकर उस अजियतनाक मंजर को खुद से दूर करने लगी। वो माजी से निकलकर अपने इर्द गिर्द देखने लगी तो उसे अब वो लड़की कहीं भी दिखाई न दी। असद आंखें मूंधे लेटा हुआ था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक इंतहाई खूबसूरत लड़का था जिसके चेहरे पर दिलकशी इस कदर थी कि एक दफा देखकर बार बार देखने की तमन्ना होती। वो लड़की अचानक से कहीं से नमूदार हुई तो अनम अपनी जगह से एकदम उछल गई और बोली कि तुम यहाँ दरवाजे से तो नहीं आई, तो फिर कहाँ से आई हो। तो उस लड़की ने एक गुड़ती हुई निगाह अनम पर डाली और बोली कि मुझे एक बात बार बार क्यों दोहरानी पड़ रही है कि मैंने तुम्हें कहा भी है कि तुम बातों की तह में ना जाओ, सिर्फ जो हो रहा है उसको होने दो, तो तुम बार बार क्यों ऐसे सवाल कर रही हो। तो अनम को दोबारा से अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा सवाल कर रही है। अनम ने दोबारा पूछा, लेकिन यहाँ सब कुछ अजीब है, मैं कैसे ना सवाल करूं, मेरे लिए सब बहुत अजीब है। तो वो लड़की अनम को देखते हुए बोली कि कुछ भी अजीब नहीं है, तुम बस खामोशी से यहाँ बैठी रहो। अचानक से वहां बहुत से लोगों के बोलने की आवाजें आने लगी। अनम ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई न दिया। वो लड़की किसी से बातें करने लगी और अनम धक सीने पर हाथ रखे उसका रिएक्शन देखने लगी कि न जाने वो किससे बातें कर रही है। वो आवाज बहुत अजीब व गरीब सी थी। वो लड़की ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो। अनम तो ये सब देखकर डर रही थी कि उसके साथ ये अजीब हरकतें क्यों हो रही हैं। वो सोच रही थी कि ना जाने वो लड़की कौन थी, कैसी थी और ऐसे अजीब व गरीब हरकतें क्यों कर रही थी। लेकिन उसकी दोबारा उसे बुलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किससे बातें कर रही है। काफी देर गुजरने के बाद वो लड़की अनम से मुखातिब होकर बोली, क्या तुम्हें भूख लग रही है। तो अनम जो कल दोपहर की भूखी थी सोच में पड़ गई कि उसे वाकई भूख लग रही है। उसने उस लड़की को कोई जवाब न दिया और खामोश रही। तो वो लड़की दोबारा मुखातिब होकर बोली कि तुम क्या खाना चाहोगी। तो अनम आहिस्ता सी आवाज में बोली कि कुछ भी मिल जाए। तो उस लड़की ने अचानक से एक प्लेट उसके आगे कर दी और वो तो हैरान सी उसका चेहरा देखने लगी कि अचानक से गर्मा गर्म चावलों की प्लेट कैसे उसके आगे आ सकती है। अनम को अब उससे खौफ महसूस होने लगा था। वो आंखों में आंसू लिए बोली कि मुझे नहीं समझ आ रही तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम कौन हो। तो वो लड़की दोबारा से मुखातिब होकर बोली कि फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम इस बात की टोह ना लगाओ कि मैं कौन हूं, बस जो हो रहा है उसे होते हुए देखो। तो अनम भी खामोश हो गई। उस लड़की ने दोबारा से अनम को खाने की तरफ मतवज्जे किया तो हवा में मौल्लक उस प्लेट को देखकर अनम के दिल को कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप से उसे पकड़कर खाने लगी। जैसे उसने पहला नवाला मुंह में रखा वो हैरान रह गई कि उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले लजीज खाना कभी नहीं खाया था और खाना इस कदर गर्म था कि यूं मालूम हो रहा था जैसे अभी अभी ताज़ा चूल्हे से उतार कर लाया गया हो। अनम के लिए यह सब कुछ बहुत अजीब और गरीब था। अनम उससे कुछ न बोली और खाना खाने लगी। खाना खाते हुए उसकी नजर असद पर पड़ी तो असद के हाथ पांव में हरकत देखकर अनम ने खाना वहीं छोड़ दिया और खुशी से उस लड़की की तरफ पलटी और बोली, मुझे लगता है असद को होश आ गया है। तो वो लड़की बोली, हाँ होश तो आ गया है, लेकिन कुछ दिन के लिए चल फिर नहीं सकेगा, इसका जख्म बहुत गहरा है। तो अनम मुझसे पूछने लगी, क्या वो एक डॉक्टर है। तो वो लड़की अब गुस्से में आ गई और बोली कि मैंने तुम्हें पहले भी बहुत दफा मना किया है कि मेरी खोज नहीं लगाओ, जो हो रहा है उसे होते हुए देखो, तो क्यों बार बार इतने सवाल करती हो। अब अनम दोबारा से शर्मिंदा होकर असद की तरफ मुतवज्जे हो गई।
अब अनम को समझ नहीं आ रही थी कि वो सूरत हाल कैसे असद को बताए। यूं लग रहा था जैसे वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गई है। लेकिन फिर वो खुद को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि कुछ नहीं होगा। वो असद की जानिब बढ़ी। असद अब आहिस्ता आहिस्ता से आंखें खोने लगा था। अनम को ना जाने उसकी हमदर्दी में ही बेतहाशा खुशी सी महसूस हुई और वो जल्दी से असद को उठने में मदद देने लगी और उसके करीब पहुंचकर बोली कि तुम ठीक तो हो? तो असद बेहद नकाहत से बोला कि हाँ, मैं ठीक हूँ। असद ने बगौर उसे देखते हुए उसे जवाब दिया और उसे मुखातिब करते हुए पूछने लगा कि तुम ठीक हो? तो अनम गर्दन झुकाकर बोली कि जी, मैं भी ठीक हूँ। असद ने इर्द गिर्द का जायजा लिया और देखने लगा कि वो कहाँ है और ये कौन सी जगह है। उसने इर्द गिर्द भी देखा था। उसे वो लड़की खड़ी दिखाई दी। वो अनम की तरफ सवालिया नजरों से पूछने लगा कि ये लड़की कौन है। तो अनम ने बताया कि ऐसे जख्मी हालत में वो बेहोश हो चुका था तो उसे ये लड़की मिली थी। ये लड़की उसे यहाँ तक लेकर आई। तो असद ने मशकूर सी निगाहों से उस लड़की की तरफ देखा और बोला कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारी मदद की, लेकिन आप दोनों मुझे वहां से कैसे लेकर आई? वो हैरान सा उनकी तरफ देखने लगा। तो अनम ने बताया कि इस लड़की ने अकेले ही असद को उठाया था। असद इस बात पर भी अभी हैरान ही हो रहा था कि अनम ने बताया कि जंगल में ही वो हॉस्पिटल था, वहीं पर उसे लेकर आई हैं। तो असद हैरान सा उसका चेहरा देखने लगा और उसके जहनी हालत पर शक करने लगा और बोला कि इस जंगल में तो दूर दूर तक किसी एक कमरे का नामो निशान तक नहीं है, तो वो हॉस्पिटल की बात कर रही है। असद ने हंसते हुए कहा कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, कोई जंगल से बाहर अस्पताल होगा। लेकिन अनम अपनी बात पर जोर देते हुए बोली कि नहीं, हम जंगल में मौजूद एक हॉस्पिटल में मौजूद हैं और वो इसी जंगल में है। वो लड़की उस जंगल से बाहर नहीं गई थी। अब चाहे तो उस लड़की से पूछ सकते हैं। उसने उस लड़की की तरफ इशारा किया तो असद उस लड़की की तरफ मतवज्जे होकर पूछने लगा, जो बिल्कुल खामोशी से खड़ी उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। असद उससे कहने लगा कि मुझे इतने साल हो गए इस चौकी पर, इस जंगल पर काम करते हुए, लेकिन आज तक मुझे ये बात मालूम ना हो सकी कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है। हालांकि मैं इस जंगल के एक एक चप्पे से वाकिफ हूँ। तो फिर आप किस हॉस्पिटल की बात कर रही हैं? और ये आप कहाँ पर मुझे लेकर आई हैं? और आप हैं कौन? असद ने एक साथ इतने सवाल कर दिए तो वो लड़की गर्दन झुकाकर बोली कि अगर आपको पहले नहीं मालूम था कि यहाँ पर इस जगह पर हॉस्पिटल मौजूद है, तो अब आपको मालूम हो गया ना कि यहाँ पर हॉस्पिटल है। तो आप बात को ख़त्म कर दें और जैसे ही तंदुरुस्त हों अपने घर को जाएं। लेकिन असद अपनी बात पर अभी भी कायम था। उससे पूछने लगा कि आखिर तुम बताती क्यों नहीं कि तुम हो कौन और कहाँ पर हमें लेकर आई हो? अनम ने भी असद की हाँ में हाँ मिलाई और बोली कि हाँ, मैं भी इससे जब से आई हूँ तब से पूछ रही हूँ कि ये कौन है और इसकी हरकतें भी बहुत अजीब और गरीब सी महसूस हो रही हैं। देखें, आप जिस बेड पर लेटे हुए हैं ये बेड हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप इस पर लेटे हुए हैं। असद ने जैसे ही अनम के कहने पर बेड की तरफ देखा तो वहां पर वाकई किसी चीज का नामो निशान नहीं था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो हवा में मुअल्लक है, लेकिन जैसे ही वो हाथ लगाता उसे महसूस होता कि जैसे वो कोई बेड पर मौजूद है। अब असद भी परेशान हो गया और उस लड़की से पूछने लगा कि वो कौन है और उन्हें कहाँ लेकर आई है। तो वो लड़की बोली कि वो कोई आम इंसान नहीं है। तो अनम खौफजदा सी असद की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि ना जाने आम इंसान नहीं है तो ये कैसी लड़की है। असद उससे दोबारा पूछने लगा कि अगर आम इंसान नहीं हो तो फिर कौन हो? तो वो लड़की इससे पहले कि कोई जवाब देती वहां से गायब हो गई। असद और अनम के तो गोया काटो तो लहू में बदन दौड़े वाला हिसाब हो गया। अनम तो अनम, असद भी खौफजदा सा हो गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उन्हें वो लड़की कहीं भी नजर ना आई। अब उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। अनम ने जल्दी से असद की तरफ मतवज्जे होकर कहा कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरे तो घर वाले भी बहुत परेशान होते होंगे। अब तक तो चाहे उन्होंने मेरी शादी को खत्म कर दिया हो। वो दुख से सोचते हुए असद को कहने लगी। तो असद ने उसे तसल्ली दी और बोला कि मैं जैसे ही चलने के काबिल होता हूँ हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकलते हैं। मैं चलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे तो हिला भी नहीं जा रहा था। अनम ने उससे उठने से मना कर दिया और बोली कि जो मेरे नसीब में था वो हो चुका है। उसने असद को अपने साथ होने वाले तमाम वाकयात बताए तो असद भी अफसरदा सा हो गया, लेकिन अभी वो उस लड़की के मुतालिक सोचने लगे। वो लड़की ना जाने अचानक से कहाँ गायब हो गई। अनम कहने लगी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, यूं लग रहा है जैसे कहीं पर कुछ गलत है। वो लड़की इस तरह कैसे गायब हो सकती है? मुझे लगता है कभी लड़की वाकई कोई लड़की नहीं बल्कि कोई जादूगर वगैरह है। तो हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना चाहिए। तो असद ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, हाँ निकलना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा जहाँ से हम निकलेंगे। वो इधर उधर हैरान होकर देखने लगे।
लेकिन उन्हें कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आया। अचानक से वो लड़की दोबारा नमूदार हुई तो असद ने जल्दी से उससे पूछा कि तुम आखिर कौन हो और हमें क्यों नहीं बताती कि कौन हो, और इस तरह कैसे अचानक से नमूदार हो जाती हो और अचानक से गायब हो जाती हो। तो वो लड़की बोली, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप कहाँ पर हैं। तो आप इस बात की तह में जाने की कोशिश ना करें। तो अनम गुस्से में आ गई, आखिर तुम चाहती क्या हो, हमें कहाँ लेकर आई हो, और बताती क्यों नहीं कि आखिर क्या मसला है तुम्हें। अनम ने काफी रूखे अंदाज से कहा। तो वो भी काफी गुस्से से बोली कि मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है कि तुम लोग कहाँ हो। हाँ, तुम लोगों को बाहिफाजत तुम लोगों के घर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले इस फौजी को ठीक होना पड़ेगा और मैं इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करूंगी, और इसमें दिन भी लग सकते हैं, और अगर लग सके हुए तो महीने भी लग सकते हैं। उनकी बात सुनकर असद तो भौंच का रह गया और बोला कि नहीं नहीं, मैं किसी सूरत भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं खुद ही जाकर ट्रीटमेंट करवा लूंगा। आपकी सिर्फ ये मेहरबानी होगी कि हमें यहाँ से जाने दें। तो लड़की मुस्कुरा कर बोली कि नहीं, तुम बगैर ट्रीटमेंट करवाए यहाँ से नहीं जा सकोगे, और ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें बता रही हूँ कि दिन भी लग सकते हैं और महीने भी लग सकते हैं, लेकिन इससे पहले ठीक ठाक हुए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये मेरे सरकार का हुक्म है, और जो उसकी हुक्म उदूली करे उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। असद उसकी बात सुनकर धक सा रह गया और बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी चौकी पर मेरी जरूरत है। क्या तुम दुश्मन तो नहीं जो वहां पर हमला करने के लिए मुझे यहाँ पर बांध कर रख रहे हैं? तो वो लड़की इंतहाई रूखे अंदाज में बोली कि मुझे किसी को बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ ऐसी हालत में नहीं जाने दूंगी। तो असद अपनी बात पर कायम रहा और बोला कि मैं खुद ही जाकर अपना ट्रीटमेंट ले लूंगा, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़की अपनी बात पर बजिद रही और बोली कि मैं बगैर ट्रीटमेंट के तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, और अनम को मुखातिब करके बोली कि अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो आज ही चली जाओ। तो अनम फिर हैरानी से उसका मुंह देखने लगी और बोली कि मैं इसको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तो वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली कि क्यों, तुम इसकी क्या लगती हो जो तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकती? तो अनम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचने लगी कि हाँ, वो इसकी क्या लगती है। तो असद भी अनम का मुंह देखने लगा। तो अनम झिझकते हुए बोली कि इसने मेरी जान बचाई है, मेरी इज्जत की हिफाजत की है, तो मैं अपनी इज्जत के मुहाफिज को इस तरह तन तनहा किसी के सहारे छोड़कर नहीं जा सकती। तो असद उससे मुखातिब होकर बोला कि अनम देखो, मेरी फिक्र नहीं करो, मैं जब ठीक होऊंगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा घर जाना बहुत जरूरी है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो अनम अफसुर्दा लहजे में बोली कि नहीं, मेरा घर जाना अब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मुझे लगता है अगर मैं घर गई तो मेरा बाप मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उन्हें थोड़ी मालूम है कि मुझे अगवा किया गया है। उन्हें तो यही होगा कि उनकी बेटी घर से भाग गई है, इसलिए मैं अगर गई तो मेरा वहां जाना मुझे मजीद अजियत देगा। मैं तो चाहूंगी कि मैं दोबारा कभी भी वहां ना जाऊं। हाँ, जो मेरा नाम अब वहां रह चुका है वो वहीं रहेगा, जो रह गया है। अब अनम की आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे। तो असद ने उसे तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, जैसे ही वो ठीक होगा वो खुद उसे उसके घर लेकर जाएगा और उसके घर वालों को हकीकत बताएगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तो अनम भी खामोश हो गई। असद दोबारा उस लड़की की तरफ मुतवज्जे होकर बोला कि देखो, हमें जाने दो, मैं अपना ट्रीटमेंट खुद करवा सकता हूँ। तो वो लड़की गुस्से से बोली कि जब मैंने एक दफ़ा कहा कि मेरे सरकार का हुक्म है कि तुम ट्रीटमेंट करवाए बगैर नहीं जा सकते, तो फिर तुम लोगों को एक दफ़ा मेरी बात समझ नहीं आती? किस सरकार की बात कर रही हो? असद ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मुझे तुम लोगों को कुछ भी बताने की इजाज़त नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझसे मजीद कोई भी सवाल न करो। बस जो सरकार ने कह दिया वही होगा, उनके हुक्म के खिलाफ चलने का सोचना भी मत। उस लड़की ने इंतहाई रूखे अंदाज में कहा। तो वो दोनों परेशानी से उसका मुंह देखने लगे। असद परेशानी से कहने लगा, पता नहीं कैसी लड़की है, किस सरकार की बात कर रही है। अचानक से लड़की दोबारा वहां से गायब हो गई। अब तो दोनों इंतहाई परेशान थे कि इस सूरत हाल में क्या करें। इसी तरह दिन गुजरने लगे। वो लड़की नमूदार होती, असद का ट्रीटमेंट करती। आहिस्ता आहिस्ता असद का जख्म ठीक होने के बजाय बढ़ने लगा, लेकिन वहां पर जो बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें हुई वो देखकर अनम का भी दिल हौलता था, और असद भी परेशान होता था कि जब वो जिस चीज की तमन्ना करते वो उनके सामने नमूदार हो जाती। वो बहुत हैरान थे कि ना जाने वो लड़की कौन है और उनके साथ ये अजीब माजरा क्या हो रहा है। अनम ने एक दो दफा बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे एक अनजानी कुव्वत ने बाहर न जाने दिया। उसके कदम ही बाहर की तरफ न उठते। वो दोनों बहुत परेशान होते कि न जाने वो कहाँ पर कैद होकर रह गए हैं।
ना ही वो लड़की उन्हें कुछ बताती थी। वो बस ये कहती थी कि उनके सरकार का हुक्म है कि असद बगैर ठीक हुए वहाँ से ना जाए। असद को अब रह रहकर अपनी चौकी याद आ रही थी कि वहाँ पर न जाने कितने हमले हुए होंगे। उसके कैप्टन ने उस पर भरोसा करते हुए उसे वहाँ भेजा था। वो हैरान था कि अभी तक उसे ढूंढने के लिए क्या कोई भी फौज नहीं पहुंची। ऐसे ही अनम और असद एक दूसरे से अपना दिल का बोझ हल्का करते। अनम को अब हकीकत में असद की फिक्र होने लगी थी। उसका जख्म था कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें वहां पर ना दिन का पता था ना रात का पता था। दोनों बस एक दूसरे को तकते रहते और वक्त का अंदाजा लगाते रहते। वक्त आके गुजर रहा था। वो लड़की जब दिल चाहता आ जाती, जब दिल चाहता चली जाती। अब उन दोनों ने उससे सवाल जवाब करने का सिलसिला भी बहुत कम कर दिया था। वो उसे बहुत कम मुखातिब करते थे, क्योंकि जब भी वो उसे मुखातिब करते वो इंतहाई रूखे अंदाज से बोलती। तो अनम को तो उसका रवैया बहुत चुभता, इसलिए उसने उससे बात करना ही कम कर दी थी। एक दिन यूं ही वो लड़की वहां पर आई तो वो अकेली नहीं थी, उसके साथ काफी ज्यादा लोग थे जो वहां पर नमूदार हुए। असद और अनम उन्हें देखकर खौफजदा से हुए, क्योंकि उनकी शक्लें बहुत अजीब और गरीब थीं। ये हैं हमारे सरकार, वो लड़की जो उस दिन से असद का ट्रीटमेंट कर रही थी। असद से मुखातिब होकर बोली तो असद ने उसके इशारे करते हुए हाथ की जानिब देखा। वहां इंतहाई अजीब और गरीब शक्ल का एक आदमी खड़ा था, जिसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक महसूस हो रही थी। उन सब में सिर्फ उस लड़की की शक्ल खूबसूरत थी, बाकी सब इंतहाई अजीब और गरीब शक्ल सूरत के थे। मुझे उम्मीद है कि ए लड़के, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, तो अब हम तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत देते हैं। उस आदमी की आवाज भी उस तरह अजीब और खौफनाक सी थी। अनम ने खौफ से असद का हाथ पकड़ लिया तो असद ने उसे इशारे से तसल्ली दी और उस आदमी की तरफ मतवज्जे होकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस दुनिया के लोग हैं? असद ने अपनी सारी हिम्मत मुज्तमा करते हुए उस आदमी से सवाल किया। तो वो आदमी मुस्कुरा कर बोला कि अगर हमने तुम्हें बताया कि हम कौन हैं तो तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए तुम ये जाने बगैर कि हम कौन हैं यहाँ से चले जाओ। नहीं, ये जाने बगैर कि आप लोग कौन हैं हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप हमें बताएं कि आप लोग कौन हैं और क्यों हमें यहाँ कैद कर रखा था। अनम ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और डरते हुए बोली कि जी मैं भी यही कहने वाली थी कि ये लोग कौन हैं, हम ये जाने बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिर सुनो, ये कोई आम दुनिया नहीं है, बल्कि तुम लोग जिन्नात की दुनिया में हो। ये कोई जंगल नहीं है, ये हमारी दुनिया का एक हिस्सा है। उनकी बात पर अनम का तो दिल गोया उछलकर बाहर होने वाला हो गया। वो परेशानी से असद का मुंह देखने लगी कि वो इंसानी दुनिया में नहीं है। हाँ, तुम इंसानों की दुनिया में नहीं हो। अब तुम्हें सुकून मिल जाएगा कि पता चल गया कि मैं कौन हूं। तो सुनो, मैं एक जिनजादी हूं जो जिन्नात की नर्स हूं, जो उन्हें ट्रीटमेंट देती हूं। उस लड़की ने अनम की तरफ देखते हुए कहा। तो अनम ने हैरान होकर कहा कि उसे कैसे पता चल गया कि उसने दिल में क्या सोचा। तो वो लड़की बोली कि जैसे तुम लोगों को यहाँ पर मौजूद कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसी तरह तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि मुझे कैसे पता चला। उसने कहा तो अनम मजीद खौफजदा हुई। अब तुम्हारा जख्म मुंदमिल हो गया है, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जाने की इजाज़त देता हूँ। मैं जिन्नात का सरदार हूँ। जैसे ही उस लड़की ने मदद के लिए पुकारा तो मेरा वहाँ से गुजर हो रहा था। मैंने जल्दी से अपनी जिन्नाती नर्स को वहाँ भेजा ताकि वो तुम लोगों की मदद कर सके, और मैंने ही उसे मना किया था कि जब तक तुम्हारा जख्म ठीक ना हो तुम्हें वापस न जाने दिया जाए। लेकिन अब तुम्हें जाने की इजाज़त दी है, तुम अब जा सकते हो। उसने असद को मुखातिब करके कहा तो असद को अब उससे खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उसने उसका शुक्रिया अदा किया। उन दोनों ने उनका शुक्रिया अदा किया और इजाज़त तलब की। अब असद बिल्कुल ठीक चल रहा था। उन लोगों ने उन्हें इजाज़त दी और उन्हें कहा कि अपनी आंखें बंद करें। उन्होंने आंखें बंद की तो असद और अनम असद के लगाए गए खैमे के पास खड़े हुए थे। अनम को अब समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाएगी। उनके लिए ये एक हैरानकुन हादसा था कि वो जिन्नात की दुनिया से होकर आ रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि वो दुनिया में किसी को भी ये बात नहीं बताएंगे, नहीं तो कोई भी उनकी बात का यकीन नहीं करेगा। असद ने अनम को तसल्ली दी और बोला कि वो फिक्र ना करे, वो उसे उसके घर लेकर जाएगा और उसके घर वालों से बात करेगा। वो दोनों जंगल से छावनी की तरफ रवाना हुए। छावनी पर पहुंचे तो कैप्टन बहुत हैरान होकर असद की तरफ देखने लगा और बोला कि सुबह गए थे और अभी शाम को वापस भी आ गए हो, और ये लड़की कौन है? तो असद हैरानी से उसके मुंह तकने लगा और बोला कि मैं क्या सुबह यहाँ से गया था? तो वो बोला तो और क्या, तुम्हें कई साल हो चुके हैं, अभी सुबह ही तो तुम यहाँ से गए थे और कह रहे थे कि तुम्हें वहां पर रखूं, और अब बगैर बताए वापस आ गए हो।
कोई इत्तला भी नहीं दी। पीछे से चाहे वो जंगल वाले हमला कर दें तो असद धक सा रह गया और अनम की तरफ देखने लगा कि हमें सिर्फ यहाँ आए 1 दिन हुआ है। तो अनम भी बहुत हैरान हुई और बोली कि यानी कि मुझे कॉलेज से गए हुए सिर्फ 1 दिन गुजरा है, हमें जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना होगा। तो असद ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कैप्टन को बताने लगा कि ऐसे ऐसे एक लड़की अगवा हो गई थी और वो उसे बचा कर लाया है, तो अब उससे जल्द अज जल्द उसके घर पहुंचाना होगा। तो कैप्टन ने उसे इजाज़त दे दी, लेकिन उसकी दरख्वास्त और छुट्टी का प्रोसेस होते होते 1 दिन लग गया। अनम 1 दिन वहीं रही। कैप्टन ने भरपूर असद का साथ दिया और बोला कि ठीक है, मैं उमर को इस चौकी पर भेज देता हूँ, तुम इस लड़की के साथ चले जाओ। अनम ने जो एड्रेस बताया वो उनके एरिया से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी दूर था। उन्हें जाते हुए तकरीबन 1 घंटा लग चुका था। वो उसे लेकर घर पहुंचा तो अनम घर जाते हुए डर रही थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, उसके बाप की खड़कदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी कि कहाँ से आ रही हो। तो अनम को कुछ समझ न आई कि वो क्या बोले। पीछे असद को देखकर उसके बाप का खून खौल उठा। वो बोला कि अनम, जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं रही। तुम्हारी परसों को शादी थी और तुम आवारा हुई फिर रही हो। लेकिन अनम उनकी बात पर खामोश रही। तो अनम की माँ बोली कि आखिर बताती क्यों नहीं, कहाँ गई थी। अनम से कुछ बोला ना जा रहा था। काफ़ी देर कुछ ना बोली और आंसू बहाती रही। तो असद आगे बढ़कर बोला कि आप बैठकर मेरी बात सुने। तो उसका बाप गरजदार आवाज़ में बोला कि ऐ लड़के, तुम हमारे कुछ नहीं लगते जो हम तुम्हारी बात सुने। मैं अपनी बेटी से मुखातिब हूँ, बल्कि बेटी नहीं, इस लड़की से मुखातिब हूँ। मेरे लिए बेटी मर चुकी है, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। अनम बाप की बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी। तो असद ने उसके बाप को ठंडा करना चाहा, लेकिन कोई भी नतीजा न निकला। वो अनम को मारने मराने पर तो लाए थे। आखिर काफ़ी देर बाद उसका बाप ठंडा हुआ तो असद ने सारी सूरत हाल उसके गोश गुजार की। तो उसके बाप को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और जल्दी से अनम को गले लगाया और बोला, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। उसकी माँ ने भी बेटी को गले लगाया और ज़ारो कतार रोने लगी। उसकी माँ को अनम को बताते हुए झिझक हुई, लेकिन हौसला करते हुए असद के सामने ही बोली कि लड़के वाले शादी तोड़ गए हैं। अनम के तो गोया सर पर आसमान गिरा। वो सोच भी नहीं सकती थी रेयान ऐसा कर सकता है। वो फटी फटी निगाहों से माँ की तरफ देखने लगी तो माँ ने शर्मिंदा से होकर सर झुका लिया। असद ने झिझकते हुए अनम के बाप से मुखातिब होकर बोला कि आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी से मैं उसी तारीख को शादी करूंगा, आप फिक्र क्यों करते हैं। यूं असद अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को मना लाया और उसी दिन अनम की बारात लेकर पहुंचा और शादी के बाद उसे अपने साथ ले गया। यूं वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जन्नात की दुनिया में जाने वाला वाकया दोनों के लिए यादगार रहा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।